Hello friends, welcome back to our channel Learn with Nishman. We are going to do section 273 and 299 plus their relation with section 205 and 317 today. Right, all these sections are of Code of Criminal Procedure 1973. Basically section 273 and 299 are related to the evidences produced in stage of inquiries and trial, and what is the effect if the accused is absent under section 205 and 317. We will discuss them all together. So let's start our topic. What section 273 says, बच्चे? It's a general law. Okay, general law है. It says the trial would be conducted and evidences recorded in his presence. His is here accused, right? Always जब भी ट्रायल होता है या कभी भी एविडेंसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं वो सब हमेशा एक्यूज्ड की प्रेजेंस में किए जाते हैं. एंड इफ इन एनी केस इट इज हिज एब्सेंस देन हिज लॉयर ought टू बी प्रेजेंट. सो एक्यूज्ड हो या उसका लॉयर प्रेजेंट हो. That's what our section 273 says. But if we have to dispense them, अगर हमें dispensation करनी है, उनकी presence नहीं चाहिए, then your section 317 and 205 we will discuss. Okay, so example, there is an accused A. एक accused है A, required that he should be present in trial. If he is absent, then his lawyer must be present. तो आपको पता लग गया, या तो A present हो या फिर A का lawyer present हो. If dispensation, मतलब अगर dispensation है तो application किसके अंडर फाइल करनी पड़ेगी? 205 के अंदर at the stage of issue of process. बट जो सेक्शन 317 है इसमें dispensation at any stage फाइल हो सकती है. यहाँ पर सिर्फ issue of process के ड्यूरिंग और यहाँ पर under the stage of at any stage. So in criminal cases accused has to be present unless court exempts. Dispensation का मतलब है exempts. अगर कोर्ट किसी भी केस में exempt कर रही है ठीक है, वहां पर accused के presence की नीड नहीं है. But if in any other case is there without any exemption, accused has to be present. What in our criminal law, accused is bound to be personally present unless the court dispenses with the personal appearance. ठीक है, dispenses का मतलब है कि कोर्ट छूट दे देती है accused को कि उसको personal present होने की ज़रूरत नहीं है. बट अदरवाइज अगर यहाँ पर किसी भी केस में कोर्ट ने कोई छूट नहीं दी है, एग्जाम्प्ट नहीं किया है, देन एक्यूज्ड के बाउंड है, हिज ड्यूटी बाउंड कि उसको पर्सनली प्रेजेंट होना ही पड़ेगा. वेयर एज इन सिविल लॉ द डिफेंडेंट इज फ्री टू अपीयर पर्सनली और थ्रू अ लॉयर. ठीक है, सिविल लॉज में तो डिफेंडेंट खुद प्रेजेंट हो जाए, लॉयर के थ्रू हो जाए, अनलेस द कोर्ट बाइंड्स हिम टू अपीयर पर्सनली. वहां पर इट्स योर चॉइस, बट इन क्रिमिनल केसेज यू हैव टू. Then section 299 is the only provision, मतलब it's the exception when lawyer will be present. ठीक है, जहाँ पर lawyer की presence है. 273 में accused है, 299 में it talks about the lawyer. So lawyer में क्या कहते हैं बच्चे? Exemption as we have read. Now section 205 says whenever the magistrate wants attendance, then he issues summons. इवन इन वारंट केसेस में समन इशू किए जाते हैं. किसके किए जाते हैं? जिनकी प्रेजेंस मजिस्ट्रेट को चाहिए. सेक्शन 205 अप्लाइज एट द स्टेज ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस. आपको बताया है 205 इशू ऑफ प्रोसेस की स्टेज पर आता है और इसमें क्या करते हैं? मजिस्ट्रेट इशू समन फॉर व्हाट? For attendance. Section 205 applies at the stage of issue process. Accused may then apply for dispensation of presence, मतलब वो अपनी presence के लिए dispensation application file कर सकता है under section 205. The application for the absence would heard in the presence of the prosecution, and as and when the personal attendance is to be required, then magistrate may issue such direction in section 205.
ठीक है। 205 के ही अंदर आपको अपने एब्सेंस की एप्लीकेशन देनी पड़ती है और उस एप्लीकेशन की जो फर्दर हियरिंग है वो प्रोसिक्यूशन के सामने होगी। बट अगर मजिस्ट्रेट को लगे कि उनको पर्सनल अटेंडेंस फिर से चाहिए, वो 205 के अंडर उनको एप्लीकेशन देंगे। सो इवन आफ्टर डिस्पेंसेशन पर्सनल अटेंडेंस कुड बी ऑर्डर की जा सकती है, बेशक आपने डिस्पेंसेशन कर दी है। क्राइटेरिया फॉर डिस्पेंसिंग या क्या क्राइटेरिया होता है, प्रोसीजर देखिए बच्चे। फॉर इफेक्टिव और फेयर ट्रायल इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, या सोसाइटल इंटरेस्ट में होता है कि आपको प्रेजेंस चाहिए। बट कई बार क्या होता है, कोर्ट खुद से डिस्पेंसिंग कर देती है जिसमें सोसाइटल इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो, मतलब वहां पर एक्यूज्ड की नीड नहीं भी होगी तो भी जो प्रोसीडिंग्स है उन पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट एट द सेम टाइम देयर इज एन इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू, मतलब एक्यूज का इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी होता है कि नहीं, मुझे तो पर्सनल प्रेजेंस होना है, मेरे खिलाफ एविडेंसेस पेश हो रहे हैं और मैं ही प्रेजेंस ना हूँ। सो देयर इज अ बैलेंस बिटवीन सोसाइटल एंड इंडिविजुअल इंटरेस्ट। द क्राइम हेयर इज अ समन केस विच इज नॉट सो ग्रेव। ओके, इतना सीरियस क्राइम नहीं होता है। अगर सीरियस क्राइम होगा तो दोनों की ही प्रेजेंस की नीड है। इन सेक्शन 205 कोर्ट हैज टू डू अ बैलेंस बिटवीन द सोसाइटल इंटरेस्ट इन अ फेयर ट्रायल एंड द एक्यूज्ड इंटरेस्ट इन द फेयर ट्रायल, इन द सेंस दैट एविडेंसेस शैल बी रिकॉर्डेड इन हिज प्रेजेंस। ओके, तो ये मेन सेक्शन 205 का वर्क होता है कि कोर्ट अपनी मर्जी से डिस्पेंसेशन दे सकती है, बट डिस्पेंसेशन देते हुए मतलब एक्यूज की एब्सेंस करवाते हुए दे हैव टू सी अ बैलेंस बिटवीन सोसाइटल इंटरेस्ट एंड द इंडिविजुअल इंटरेस्ट। Okay, on the one hand, and the individual interest in letting the accused not to get absurd from his day-to-day activities, and the societal interest involved through his activities on the other hand। ठीक है बच्चे, क्या होता है कि कई बार जो ऑफेंस है वो इतना सीरियस नेचर का नहीं होता है और एक्यूज्ड की पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब किए बिना हम क्या सोचते हैं कि हम हियरिंग करते रहें। कोर्ट को लगता है कि देयर इज नो नीड फॉर हिज पर्सनल प्रेजेंस, दैट्स वाई 205 के अंडर जो हियरिंग है वो चलती रहती है। बट सोसाइटल इंटरेस्ट भी देखना होता है आपको और इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी देखना होता है। सो दैट इज अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, right? The court has to draw a fair balance between the two, and if crime is not of grave category, the personal attendance can be dispensed with। okay, आप dispensed कर सकते हो both under section 207, that is at the stage of issue process if summon was issued, and also under section 317 at any stage even in a warrant case। okay, 205 होता है बच्चे हमारा समन केस, दिस इज, और 317 होता है वारंट केस। ओके, सो इन ऑर्डर ऑफ डिस्पेंसेशन और रिफ्यूजल ऑफ डिस्पेंसेशन इज एन इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर। मतलब देखिए 205 के अंदर मैजिस्ट्रेट डिस्पेंस करता है और 205 के अंदर अगर अक्यूज्ड को ये है कि नहीं मुझे अटेंड करना है, मुझे एविडेंसेस के टाइम में प्रेजेंट होना है, तो वो 205 के अंदर ही एप्लीकेशन डालता है। okay, and hence a revision will not lie, rather an appeal can be filed under section 397। अगर 205 के अंदर डिस्पेंसेशन पास हो गई है तो सबसे पहले 397 के अंदर अपील करोगे आप। ठीक है, ये रिवीजन नहीं हो सकता है, अपीलेबल ऑर्डर है। द ऑर्डर ऑफ डिस्पेंसेशन कैन बी ऑब्टेन्ड इवन फ्रॉम द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से भी डिस्पेंसेशन का ऑर्डर मिल जाता है। नाउ कमिंग टू सेक्शन 317, 317 क्या बात करता है बच्चे, that in section 205 it is at the stage of issue of process, we have read, but in section 317 it is at any stage, right? So 317 में dispensation जो है वो किसी भी स्टेज पे हो सकती है, at any stage। तो ये एक डिफरेंस है दोनों में, राइट? इन 317 इट कैन बी डन इन समन्स और वारंट केस, बोथ बताया ना मैंने, वारंट केस भी हो सकते हैं और समन केसेस भी हो सकते हैं। देन ऑल्सो सर्टेन स्पेसिफिक ग्राउंड्स आर स्टेटेड बट इट इज नॉट सो इन 205। यहाँ पर कुछ ग्राउंड्स भी हैं जो कि 205 में नहीं है। सो इन अ वारंट केस डिस्पेंसेशन फॉर नॉन अपीयरेंस कैन बी गिवन, बट ही विल हैव टू अपीयर एज एन एग्जामिनेशन अंडर सेक्शन 317। देखिए
समन केस होगा तो वो कंप्लीटली डिस्पेंस्ड है, बट अगर वारंट केस होगा इन सेक्शन 317 तो एक्यूज्ड को एग्जामिनेशन के टाइम तो पक्का प्रेजेंट होना ही पड़ेगा। यहाँ पर एक चीज ये है। ओके, सो मैं आपको एक समरी के तौर पर बताती हूँ। सिचुएशंस होती हैं हमारी दो, क्या? वन इज हेयर नो लॉयर, वन इज एक्यूज्ड थ्रेट्स, राइट? देन नो लॉयर में ही अपॉइंट्स द लॉयर, हेयर सेपरेट ट्रायल अटेंडेंस चल रही है। सो दैट इज योर 205, राइट हेयर इट इज योर 205, इट इज योर 317। 205 में क्या होता है? 317 applies even when accused disturbs, but here it is not provided. 205 is only related to summon cases and 317 warrant plus summon cases. Here in summon 313 की presence नहीं होती। 313 मतलब examination, ठीक है, आपको एग्जामिनेशन में जाने की जरूरत नहीं है। बट 317 में इन वारंट केसेस 313 प्रेजेंस इज कंपल्सरी, यू हैव टू प्रेजेंट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन एंड दैट इज कंपल्सरी, right? So this is all about the evidences stage during inquiries and trial and the presence या absence of accused during these trials by the order of magistrate. Which sections are related to the accused? What are the evidence related sections? This we have all studied today. Give a revision to this video, read the sections again and again, रीड केस स्टडीज। आई थिंक इनसे रिलेटेड केस स्टडी नहीं है, बट आप एक टेबुलर फॉर्म में कीजिएगा, इन दोनों का डिफरेंस कीजिएगा, शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है। ओके, एंड देन स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। वी आर गोइंग टू डिस्कस मेजर सेक्शन 299 in detail. Till then, keep watching, keep sharing. Thank you.